Hello everyone, how's everyone doing? Welcome to K Watches Dramas. I hope all of you had a lovely weekend. I had a blast of a weekend. I had a long weekend because Monday was off here, but I hope all of you had a wonderful weekend. मैं जल्दी सबके comments पढ़ूंगी और मैं time stamp डाल दूंगी for those of you that want to skip the comments and hit right straight to the review. You can do that. सबसे पहले Shan Ali, how Azan insults Hajra Yameen and she's nothing but just shocked. I mean, girl, make your standards bra. 100%. Ask 754 पहले वाली एपिसोड्स में वो इसको स्टाफ रूम बोल चुके हैं. बुक्स की वजह से लाइब्रेरी लग रही है, वो अलग बात है. 100% it looks like a library. Nothing about it screams like a staff room. खालिद कह रहे हैं सिराज अमृतसरी भी गार्ड्स भिजवाए. ऑब्वियसली सर मंटो ने फरहाद को रोका था, वो इतना तो कर ही सकता है ना. सिराज अमृतसरी डजंट नो सर मंटो. बाय द वे आई एम लविंग, मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ. कॉन्वर्सेशंस आर गुड. Yeah. Ofris, actually, this could happen in the upcoming episodes. I have a feeling that Madhiya might develop something with Sajjal's brother, who's currently in jail. Also, Mia Uncle also mentioned in earlier episodes they should marry off Binyamin's daughter to settle the matter for Sulah. Let's see how it unfolds. पता नहीं क्यों सज्जल को जबरदस्ती वो घसीट रही है. वो प्यार करता है तुमसे तो करता रहे. तो क्या अब सज्जल हर लड़के से शादी कर ले जिससे वो मतलब जो उससे प्यार करता है. अजीब वियर्ड. अबू हुरारा, यू लाइक सज्जल अली ड्रामास, विच वन इज योर फेवरेट? तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है. फायजा सिद्दीकी, ग्रेट रिव्यूज ऑन पॉइंट. थैंक यू सो मच फायजा, यू आर सो स्वीट. और कौन है, इनका नाम कैसे पढ़ूंगी? महनूर सत्तार 6773. आई एम नॉट वॉचिंग द ड्रामा, मैं मंटो नहीं हूँ, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वॉच योर रिव्यू. Thank you, Mahnur. Sidra Akbar, hey, how are you, dear? How's life going? I really like your review on episode 6 of Main Manto Nahi Hu. It really matches my point of view. Thank you so much, Sidra. Great minds think alike. Especially, Faryal Khurram 879 says, hi, love the review as always. I mean, your style and the way you act in between the review is awesome. This episode of Main Manto Nahi Hu was good. And especially the scene when Ifra splashes the water on Azan's face. Oh my God, that scene was phenomenal. और है Anam 28100 on point review. Thank you, Anam, that's so sweet. Misha Usman, no need to watch the show. Your entertaining review is all I want. But I do watch Puppo's scenes. I like her strong character. Puppo का character बहुत strong है. Puppo shady भी है. Taiba Mahmood, I think it was not library, it was staff room. Usman Pirzada, why an actor of this caliber is doing roles like Nisha Nani के doctor where he only says Nihal इस बार हमसे कोई गलती ना होनी चाहिए. I don't know, उनको बेचारों को इतना क्यों जोकर बना के रख दिया हर ड्रामे में. आई हैव नो आइडिया. मतलब come on man, what's wrong with you? Like, why are you even taking these kind of roles? It doesn't make sense. तस्मीना जमान, बकवास ड्रामा. ओके तस्मीना, नो प्रॉब्लम. आपको ड्रामा अच्छा नहीं लगा. Which teacher in this world says to any random student you're looking so beautiful? वो तो बहुत ही creepy था. उसका मैंने इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाया. तस्मीना, आप जाके देख सकते हो. मतलब कि weird है वो बहुत. And which teacher invites a particular student in her birthday? ये तो हम पिछले 3 एपिसोड से कह रहे हैं जब से बर्थडे इनवाइट छपी हैं कि ये मतलब ये कौन से टीचर्स हैं और ये किस तरह की बातें हैं और क्या है, और बस पता नहीं क्या है. एंटरटेनिंग है ड्रामा लेकिन. सो परवरिश ड्रामा एपिसोड नंबर 34. आई एम वेरी सैड कि आज परवरिश की आएगी एपिसोड नंबर 35 और नेक्स्ट वीक आएगी लास्ट एपिसोड नंबर 36 और फिर ट्यूसडे को शुरू होगा बिरयानी. तो परवरिश को जो रिप्लेस करा है, और वो ऑफ कोर्स सबको पता है बिरयानी है, तो मंडे ट्यूसडे आया करेगा बिरयानी. तो लेकिन मैं परवरिश को बहुत मिस करूंगी क्योंकि बहुत ही क्वालिटी ड्रामा था. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इसको दस्तक की तरह इन्होंने खींचा नहीं है क्योंकि इसके डायरेक्टर ऑफ कोर्स मीसम हैं. तो अच्छे पॉइंट पे इन्होंने अपने इस ड्रामे को ख़त्म किया है. दैट इज़ अमेजिंग. और अच्छी मेमोरीज के साथ ख़त्म कर रहे हैं. दैट इज़ अमेजिंग. भाई ड्रामा शुरू होता है और एक ग्रैंड एंट्री के लिए तैयार हो रहे होते हैं ये दोनों लड़के, समीर और वली. बॉस इनको तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि इनको जाना होता है फहद मुस्तफ़ा से, जो मुलाकात करने के लिए, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, एक गाने के प्रोड्यूसर हैं. वो उनसे कहते हैं कि गाना लिखना और OST और बाकी सब फाइनेंशियल बातें तुम मेरी सेक्रेटरी से कर लो, whatever. फहद मुस्तफ़ा की एंट्री बहुत ही एक उन्होंने टशन में एंट्री की है, विच इज़ ग्रेट. अब एक छोटा सा उनका बस 30 सेकंड का कैमियो था. आई डोंट थिंक अब वो अगेन आएंगे ऑफ कोर्स, बट मज़ा आया फहद मुस्तफ़ा को देख के. कितने अरसे बाद हम देख रहे हैं, लाइक 7 months बाद, बिकॉज लास्ट हमने जो देखा था
उनका कभी मैं कभी तुम, उसके बाद उनका एक छोटा सा अपीयरेंस, आई मीन ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ परवरिश, तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना कैमियो दिया। और इनको उन्होंने किया कि क्यों आए हो, क्या काम है, बहुत ही नॉनशलांटली कि ओके हु आर यू गाइज, अच्छा सही है, मुझे वो एक OST बना दो और एक और गाना बना दो, यू नो। सो एनीवेज फिर वो लड़के बहुत खुश हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। और यहाँ पे ना एक तो मैं बात कहना चाहूँगी, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे स्किप कर रही हूँ, एक कल से मेरा खून खौल रहा है जब से मैंने ये देखी एपिसोड। माया की अम्मी क्यों माया को मतलब बेइज्जत कराने पे तुली नहीं है, लाइक इतना बुरा मुझे लगा जब माया की अम्मी ने उसको ब्लाइंड स्पॉट पे रखा और उसको इन्फॉर्म किए बगैर उसके बॉयफ्रेंड को घर पे बुला रही हैं, उससे पूरी बातें कर रही हैं। अपनी बेटी को तो एटलीस्ट पहले तो वो उसके डैड से डिस्कस करती हैं कि मैंने वली को बुलाया है, उसने कहा है 11 बजे आऊँगा, नाश्ते पे आऊँगा, ये है वो है। और उसके डैड कहते भी हैं कि उससे बात करने का क्या फ़ायदा होगा, ही इज़ अ 21-year-old चाइल्ड, 21-year-old लड़के से अगर आप बुला के उसको, या तो आप उसकी मॉम से कहें ना कि मुझे आपसे बात करनी है, या उसके दादा से कहें, या किसी बड़े से कहें, एल्डर से कहें। आप 21-year-old से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसको बुला के क्या कहेंगे कि बेटा बस हमें तो बस देखिए हमारी मजबूरी को समझें, बस ये रिश्ता जो है वो देखिए ना, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और वो जाके लड़का अपनी मॉम से फ़ोन पे कहता है, महानूर से कहता है कि देखिए वो डैड से मिलना चाहती हैं, और महानूर कहती है कि शी नोज़ वेरी वेल दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। और मैं 100% महानूर से एग्री करती हूँ कि वो इसको वली को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है जस्ट बिकॉज, मतलब वली के ऊपर ये प्रेशर डालने का क्या, वली का तो बस चले तो वो आज अभी निकाह कर ले माया से। वली इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज वलीज पेरेंट्स। वो उसको बुला रही हैं, उसकी माया की, या तो वो माया को वहीं बैठी होती, माया के सामने बात कर रही होती, तो इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। उन्होंने ना माया को कुछ बताया कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुला के तो जो है ना बात करना चाहती हूँ, और ऐसी बात है वैसी बात है, लाइक नथिंग, उससे जिक्र तक नहीं किया। बस एक वो लेम सी फुप्पो आई जिन्होंने एक रिश्ते की बात छेड़ दी, और माया की अम्मी का बस हाल से बेहाल वो होना शुरू हो गई कि देखो ना सर्जन है और यूं है और डॉक्टर बहू चाहिए। तो ये तो बैक टू स्क्वायर वन आ गए हम। इतना अच्छा आपने माया की अम्मी को रिडीम किया था उनका कैरेक्टर कि वो वलीद के सिचुएशन में उन्होंने उसकी पहले तो वो सब साथ ही थे, उसके मॉम डैड एक साथ सोचते थे, एक जैसा सोचते थे। फिर वलीद का सिचुएशन आंटी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, माया को सपोर्ट किया, और इतना वो रोना धोना हंगामा हुआ। और मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे उनको शाउट आउट भी दिया, और वो इतनी स्वीट हैं कि उन्होंने बख्तावर मजहर ने आके रिस्पॉन्ड भी किया मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में। बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। बख्तावर स्टिल एन अमेजिंग एक्टर, उनकी एक्टिंग का कोई वो तो जवाब नहीं है, शी इज़ स्पेक्टेक्युलर। इसमें भी उन्होंने जो वली वाला सीन जो था उसमें उन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से द राइट पॉजेज, द राइट बिहेवियर, द राइट पॉस्चर, कि देखें बेटा बस आप हमारी भी तो आप मजबूरी समझे ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने एक बच्ची को इतना सपोर्ट करके आप इस पॉइंट पे लाए हैं, और एक स्टूपिड की फुप्पो के आने की वजह से जो पेटीज खा के और छोले खा के चली गई, उनकी वजह से आप अपना पूरा मिट्टी डाल रही हैं उस सीन पे जो अभी तक आपने बच्ची को सपोर्ट किया। और वो एक स्टूपिड से रिश्ते की बात करके चली गई कि वो सर्जन है और वो ढूंढ रहे डॉक्टर बहू, तो बस माया की इज्जत बच जाएगी, और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो इज्जत बचाने के लिए हम उसकी वहाँ शादी कर देते हैं। लाइक व्हाट इज, फिर आपका इतना रिडेम्पशन का फायदा क्या हुआ? आपने जो इतनी सारी रिडीम की हैं उनको एपिसोड में, आप तो बैक टू स्क्वायर वन, आप उनके कैरेक्टर को आपने उधर ही ले जाके खड़ा कर दिया जो ऐसे ही सोचता है अभी भी कि लड़की की इज्जत और ये और शादी। मतलब शी इज स्टिल लाइक व्हाट, शी इज स्टिल, आई नो उनकी रियल एज 16 है माया की, और वो ड्रामे में 18-year-old प्ले कर रही हैं। तो 18-year-old की शादी होना इतना ज़रूरी होता है पाकिस्तान में कि अगर नहीं हुई शादी तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। मतलब कम ऑन मैन, लाइक व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर वो वली आता है उससे तो कब मांग रहे हैं आप माफ़ी? आई एम सॉरी, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, आप किसी से नहीं बोल सकते। आपका जस्ट बिकॉज वो आपकी बेटी को पसंद करता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पर्सनल बाउंड्रीज हैं जो उसने सेट की हैं, और उसका भी एक पर्सनल गोल है। जैसे आपकी बेटी का पर्सनल गोल है कि उसे डॉक्टर बनना है, वली का भी पर्सनल गोल है कि उसे म्यूजिशियन बनना है। उसके लिए उसको ठोकरें खानी पड़ेंगी, वो होना पड़ेगा दर बदर उसको बेचारे को, और वो हो भी रहा है, लेकिन टाइम लगता है ना। अभी तो उसको गए हुए, घर छोड़े हुए कोई 2-3 महीने हुए हैं, और आप उससे बिल्कुल आप रिश्ते का वो लेके सर पे सवार हो गई हैं। मतलब इट्स नॉट, दैट इज नॉट यू सपोर्टिंग योर डॉटर, दैट इज जस्ट यू प्रिटेंडिंग टू सपोर्ट योर डॉटर, कि कल को आपको ये ना हो कहने के लिए कि बेटा हमने तो देखो ना अपनी तरफ से कोशिश की थी तुम्हें सपोर्ट करने की, लेकिन वो बॉयफ्रेंड निकम्मा जिसको तुम पसंद करती थी वो खुद ही इतना निकम्मा नकारा किस्म का लड़का है कि वो खुद ही कुछ ना कर पाता, तो हम तुम्हें जिंदगी भर घर तो नहीं बिठा सकते थे। आई मीन शी इज ओनली 18, अगर वो होती ना 35-40 की तो मैं समझ रही थी कि इनको इतनी तेज मतलब कि एक्सेलरेटर पे अम्मा अब्बा ने पैर रख दिया, बट शी इज ओनली 18 में तो यार मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कौन सा कलर पसंद है, तो लड़का तो बहुत दूर की बात है। मतलब
क्या इतनी इनको वो है। अच्छा ये ना एक नया आप लोगों ने देखा होगा शो में कि 3-4 एपिसोड से ये हो रहा है कि फ्लैशबैक्स में कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, मतलब हम रियल टाइम में देख रहे हैं ड्रामा और हमें पूरा सिचुएशन वो नहीं दिखाते। आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में भी जब माया की अम्मी वॉशिंग मशीन में वो सारा कुछ कर रही थी, वो फ्लैशबैक में उन्होंने हमें कॉन्वर्सेशन दिखाई कि वो लड़का आया और वो उसने जो है वो ब्लड प्रेशर क्या पता नहीं क्या इंस्ट्रूमेंट देने के लिए आया था। इसमें भी जब वली कॉलेज में खड़ा होता है तो हमें सिर्फ आधी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं माया की अम्मी की और वली की, और फिर जब वली जो है अपनी मॉम से बात कर रहा था, उसकी मॉम साफ साफ उसे कह देती है दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाट आर यू सेइंग। और सही कहती हैं, आई एम सॉरी मैं महनूर की साइड पे हूँ, शायद मैं आप लोग को विलन लगूं, लेकिन इस सिचुएशन में मैं महनूर की साइड पे हूँ, बिकॉज दिस इज, आप क्यों, मतलब अल्टीमेटम जहाँ आ जाता है ना वहाँ सिचुएशंस नहीं सही बैठती, क्योंकि आप जब अल्टीमेटम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं ना तो फिर वहाँ सिचुएशन नहीं सही नहीं होती। आपको कभी भी प्रेशर करके किसी को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवाना है, आपने खुशी खुशी करवाना है सबसे। तो एनीवेज फिर वो जो है कह देती है कि आई एम सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो फ़ोन रख देती है उसकी अम्मी। फिर हमें फ्लैशबैक पे लेके जाते हैं कि माया की अम्मी की और वली की एक्चुअली कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी, और वो पूरा वो करते हैं, लाइक बताते हैं, और वहाँ वो कहती है कि देखें हमारी मजबूरी समझें और बेटा हम बहुत मजबूर हैं, और हम फिर इस बात को यहीं ख़त्म होना, मतलब बेसिकली शी इज़ जस्ट इन पोलाइट वर्ड्स शी इज़ जस्ट प्रपोजिंग अ ब्रेकअप कि यहाँ पे बात को ख़त्म करो और हम अपनी बेटी की कहीं और कराना चाहते हैं। तो वो जब माया आती है वली से मिलने वहाँ पे स्टेयर केस के पास, तो देखिए ना, सोचिए 18 साल की बच्ची की आपको शादी की बहुत फिक्र है कि उसका घर बस जाए और उसकी शादी हो जाए। 18 साल की बच्ची की आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की और सेल्फ वर्थ की कोई फिक्र नहीं है। उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब वो उसकी शक्ल देख रही है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा क्या हुआ है। वो कह रहे हैं तुम्हारा रिश्ता हो रहा है ना, क्या है, सर्जन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत पैसे वाला है, क्या है, मतलब अब अगर हमारे बीच में कोई आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको पता ही है कि वली का एक हमेशा से दिखाया है कि ही इज अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय, अग्रेसिवली इमोशनल बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड इन हिज लाइफ। अब वो बेचारी माया वहाँ पानी पानी हो रही है शर्म से। अच्छा अम्मी ने तुमसे बात की है, तुम रिलैक्स हो, मुझे अम्मी से बात करने दो। मतलब माया की अम्मी का मुझे ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया, उन्होंने अपनी बेटी को ब्लाइंड स्पॉट पे क्यों रखा। या तो वो अपनी बेटी से पहले ये कॉन्वर्सेशन करती कि बेटा मैं सोच रही हूँ कि वली को बुलाऊं, एंड यू नो लाइक दिस। पता नहीं अम्मियाँ जो है ना रियल लाइफ में भी मैंने मॉम्स को देखा है कि वो अपनी बेटियों के और हमेशा बेटियों के साथ करती हैं, बेटों के साथ कभी भी नहीं करती। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो, ये शायद करती हूँ बेटों के साथ, आई डोंट नो, लेकिन बेटियों के साथ हमेशा कि बेटियों के पीछे जाके उनके दोस्तों से बात कर रहे हैं, और बेटियों के पीछे जाके उनके बॉयफ्रेंड से, और बेटियों के पीछे जाके उनके टीचर से। आप अपनी बेटी को पहले कॉन्फिडेंस में लें, बेटी की शादी करवानी है ना तो उसको पहले कॉन्फिडेंस में लें। अच्छा वहाँ वो जब पुप्पो वाला पूरा सीन होता है तो आंटी बड़े नॉनशलेंटली कि वो पूछती भी है माया कि क्या ये रिश्ते का क्या सीन है और ये क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है। नहीं कुछ नहीं तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, तुम बहुत थकी भी आई हो। तो मैंने कहा कि वाह अम्मी तो बहुत सपोर्टिव है यार, अम्मी नहीं इन बातों पर ध्यान देंगी, ये सर्जन वर्जन और ये जो भी फुप्पो जो थी वो तो शोशा छोड़ के चली गई। लेकिन अम्मी ने वही किया जो अम्मी करती आई हैं पहले फर्स्ट एपिसोड से। अच्छी खासी अम्मी का कैरेक्टर प्रोग्रेस हो गया था, लेकिन अम्मी फिर वहाँ से स्प्रिंग लगा हुआ है, अम्मी के पैरों में स्प्रिंग लगा है, अम्मी फिर वहां से फुदक के वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो सारा वो, हालांकि माया के अब्बू अभी तक नहीं, मुझे लग रहा था कि माया के अब्बू शायद शोर मचाएं कि यार यू नो सर्जन का रिश्ता आया है, तुम अपनी बेटी को समझाओ फला फला। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नथिंग एट ऑल। उन्होंने बस अपनी बहन को भगाने के लिए कि जल्दी जल्दी आप ये ले लेना, पैटिस खा लें, ये ले लेना, समोसे खा लें, ये ले लेना, बस जल्दी जल्दी करने के लिए कि जल्दी भागें यहाँ से। Anyway, I was just disappointed in Maya's mom's character, not the actor. She's a wonderful actor. और ऊपर से बेचारा वली जब एक रात पहले माया को फोन करता है, उसको तो नहीं पता ना ये सारी कहानी घर पे क्या हो रही है, तो माया उसका फोन नहीं उठाती, हालांकि वो जाग रही होती है। उससे कहता है ये स्टेयरकेस पे, लास्ट सीन तो व्हाट्सएप पे 3 AM का आ रहा था, इग्नोर कर रही हूँ मुझे, अब रिश्ता आ गया है तो इग्नोर कर रही हूँ मुझे। तो ऐसी बात नहीं है, उस बेचारी को तो रिश्ते का पूरा सिचुएशन पता भी नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं बताया, बट शी इज जस्ट थिंकिंग, शी इज जस्ट ओवर थिंकिंग। कभी कभी होता है कि यू नीड योर स्पेस, यू नो। तो इनकी जो हुई है ना, क्या कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन समझ लें या कन्फ्यूजन समझ लें, वो सिर्फ और सिर्फ माया की अम्मी की वजह से। अम्मियाँ जब बहुत ज़्यादा, आई अंडरस्टैंड, अम्मियाँ जो है वो अच्छी, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड थॉट, लेकिन कभी कभी उनका गुड थॉट जो है वो सामने वाले के लिए वबाल बन जाता है। ये होता है, मैंने खुद भी देखा है रियल लाइफ में। अच्छा फिर हमें दिखाते हैं भाई उनका वो कौन है, हमारे पना एंड हस्बैंड, उनका दिखाते हैं एक बहुत ही
ब्यूटीफुल सा पैचअप कि वो पहले लड़ाई करते हैं समीर के उस पर, लेकिन ये जो सलमान है ना, एक तो ये बेस्ट फादर हैं, ये बेस्ट हस्बैंड है, ये बेस्ट सन है, ये बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट ही बेस्ट है सब कुछ इनकी लाइफ में। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी वाइफ को मनाते हैं कि देखो तुम मुझसे नाराज़ ना हो, कब तक मेरे से बात नहीं करोगी। तो जहांगीर का और इनका पोलर ऑपोजिट है। जहांगीर जो है वो सिर्फ अपनी वाइफ को ताने देते हैं, उनका नार्सिसिज्म ख़त्म नहीं होता, उनका एरोगेंस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कभी भी हमें नहीं दिखाया कि जहांगीर कभी महानूर से माफ़ी मांगे। लेकिन ये सलमान बहुत ब्यूटीफुली पना को जो है कंसोल करता है कि देखो तो मेरी पोजीशन समझो, मैं समीर के बगैर नहीं रह सकता, तुम देख रही हो ना जहांगीर के बच्चों का क्या हाल हो गया है। तो बेचारे सलमान जो है वो उस राउट पे जा रहे हैं कि मैं जितना सपोर्टिव डैड बनूंगा अपने बच्चों के लिए, उतने ही मेरे बच्चे मेरे काबू में रहेंगे या मेरे से मतलब ट्रांसपेरेंट रहेंगे, राइट। और ये रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि जहाँ पेरेंट्स बहुत सख्ती करते हैं वहाँ बच्चे जो है वो पूरे खानदान को बात बता देते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। पेरेंट्स को इधर उधर से पता चल रही होती हैं बातें। और जहाँ जो है वो पेरेंट्स लीनियंट होते हैं, मैंने तो यही देखा है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कि जहाँ पेरेंट्स लीनियंट होते हैं वहाँ उनके पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है कि भाई बच्चे किसको पसंद करते हैं, बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे ड्रग्स करते हैं, बच्चे अल्कोहल करते हैं, बच्चे सब कुछ उन्हें पता होता है, बिकॉज दे हैव दैट दे डोंट हैव अ वॉल ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो आपस में डांटे मारे, वो जो भी हो, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, बट पेरेंट्स नो। लेकिन आप जब इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे अपने और अपने बच्चों के बीच में कि ये नहीं होगा और यूं नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा और बाप से ऐसे बात करोगे और माँ से ऐसे, तो बस फिर तो आपका बच्चा गया। फिर तो वो मतलब घर की मेड से बात शेयर कर लेगा लेकिन आपसे शेयर नहीं करेगा। अच्छा, वो जो CPR वाला सीन आता है जहाँ पे वली को CPR देना पड़ता है एक रैंडम पब्लिक स्ट्रेंजर को, दैट वाज अ गुड सीन। मतलब उसने बस उसने बस ही इज ट्राइंग टू मेमोराइज हिज नोट्स दैट ही हैड। उसने बेचारे ने जो 2-3 महीने के लिए med स्कूल ज्वाइन किया था, बट CPR इज लाइक सच अ नेसेसिटी। यहाँ पे आई डोंट नो लाइक वेयर यू गाइज आर वाचिंग मी फ्रॉम, बट हियर वेयर आई लिव, यहाँ पे हाई स्कूल में एवरी किड गेट्स अ CPR ट्रेनिंग बिकॉज इट इज जस्ट नेसेसिटी। और बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड, मतलब मेडिकल रिलेटेड अगर ना भी हो जॉब, तो भी आपको CPR ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका सर्टिफिकेशन आपको दिखाना होता है, जस्ट बिकॉज इट्स लाइक आई वुड से कि यार इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्किल टू हैव। अच्छा, वहाँ वो CPR कर देते हैं। आई थॉट वहाँ वो थोड़ा कॉमिक दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर ये भी लगा कि शायद ये दिखाना चाह रहे हूँ कि क्योंकि इस सीन का कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए ना, ऐसी तो नहीं रैंडमली उसने किसी को CPR दे दिया। तो मे बी ही गेट्स द रियलाइजेशन कि यार मैं मैथ स्कूल साइड पे करूँ और फिर म्यूजिक को एज अ माइनर सब्जेक्ट लूँ, या म्यूजिक मैं सिर्फ हॉबी के तौर पे करूँ, या म्यूजिक मैं सिर्फ एज लाइक लाइक अ वीकेंड जॉब काइंड ऑफ अ थिंग करूँ, एंड देन मेनली मैं मेडिकल कंप्लीट करूँ। इससे माया के पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, इन दोनों की मंगनी भी हो जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी के तरीके से तो रैप करना है ना। ऐसी रैंडमली तो CPR नहीं करने बैठ गया सड़क पे किसी रैंडम इंसान को। ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी लाइक सम कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। तो देखते हैं अभी लास्ट एपिसोड में या सेकेंड लास्ट एपिसोड में क्या बनता है। बेचारे बॉस मुझे लगता है कि चल पड़ेंगे सेकेंड लास्ट एपिसोड में। आई डोंट थिंक बॉस का रहना इन द स्टोरी इज helping the story anymore, so I think he's gonna ओके। सो गुड ड्रामा एपिसोड नंबर 3, स्टोरी की डेवलपमेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। आई वोंट से स्टोरी इज सुपर फास्ट पेस, बट आई वोंट से इट्स डेड स्लो, इट्स समवेयर इन द मिडल। तो भाई हुआ ये कि कोमल को, जरनाब जो उनका कैरेक्टर है, उनको रात भर ऑफिस में रुकना पड़ा क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट का सबमिशन करवाना था अपने बॉस को, तो उन्हें रात भर रुकना पड़ा। गौहर उनके साथ रुके और उसने कहा कि तुम अभी तक गए नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, बॉस ने कहा कि तुम्हें ऑफिस अकेले नहीं छोड़ना। यार ऐसे लूजर, मतलब कि मुझे नहीं पता कि जरनाब जो है वो उसने ये अलाउ किस तरीके से किया, क्योंकि वो एक बहुत ही आउटस्पोकन लड़की है और वो आराम से अपने बॉस को फोन कर सकती थी या ईमेल कर सकती थी कि लिसन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस गाय रोमिंग अराउंड हियर, तो मैं चाहती हूँ कि या तो आप किसी और को भेजिए या मैं घर से काम कंप्लीट। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो घर से नहीं हो सकता था? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ वो कोई रिसोर्सेज यूज कर रही थी या वहाँ कोई मीटिंग हो रही थी या वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रही थी और आराम से आप वही काम घर पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ हर स्पेंडिंग द होल नाइट इन हर ऑफिस। बारिश होने लगती है, वो कॉफ़ी बना रही होती है, वो लड़का कहता है कि मुझे भी कॉफ़ी बना दें, फिर वो लड़की जो है बारिश में थोड़ा थोड़ा यूं कर रही होती है, तो लड़का उसको ना यूं देख रहा होता है। मतलब कि यार, मतलब मुझे वो पूरा ना अननेसेसरी लगा। मतलब मुझे लगा कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन हियर, लाइक दे आर फोर्सिंग अ सिचुएशन हियर दैट डजंट नीड टू बी देयर। पहले तो ऑफिस में उसका होना ही फजूल सिचुएशन थी, लाइक शी डिडंट नीड टू बी इन द ऑफिस। सेकेंडली, अगर तुम हो भी तो तुम बारिश में यूँ थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है बिकॉज आप पूरी रात काम कर रहे थे, बट लाइक
आई डोंट नो, लाइक यू डिडंट हैव टू, तुम्हें पता है एक लूजर आदमी तुम्हारे साथ ऑफिस में है जो तुम्हें ताड़े जा रहे ताड़े जा रहे ताड़े जा रहे, तुम उसके सामने अपना क्लिप खोल के करने की नहीं थी ज़रूरत, फिर उनका क्लिप गिर भी जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि गौहर उनका क्लिप उठाता है तो वहां से जरनाब भी तो अपना क्लिप उठा सकती थी ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्लिप जो है वो बिल्डिंग से बाहर गिर गया, टेरेस से बाहर गिर गया, ऐसा तो नहीं है, वो तो वहीं गिरा था और वहां बारिश का पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जरनाब ने खुद क्यों नहीं उठ के मतलब आगे बढ़ के वो क्लिप उठा लिया? आई डेंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट एट ऑल, लाइक मुझे समझ ही नहीं आया। एनीवे मुझे लग रहा था कि रात को इसके साथ बदतमीजी करे, कुछ करे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। ये मतलब उसको हरास करता रहा एंड ही इज कमिंग इन हर स्पेस, लाइक इतना क्लोज आ रहा है। मैं होती रख के वहीं पे मुंह पे चमाट दे देती, यू नो, लेकिन वो अनकंफर्टेबल हो रही है, यूं हो रही है, यूं हो रही है, यूं हो रही है। बट एनीवेज ये दिखाया, फिर दिखाया कि सुबह वो जो है उसका प्रोजेक्ट हो जाता है, वो सबमिट कराती है, उसका बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका बॉस कहता है कि पार्टी में ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? मेरे लिए सरप्राइज? वो कहता है हाँ अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा। अच्छा मेरे लिए सरप्राइज। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि बेसिकली इसका कोई प्रमोशन वमोशन का सीन है। उसके बाद वहाँ ये दिखाते हैं फिरोज़ के घर में कि जो फिरोज़ हैं वो अपनी जो सिरा असगर है उसकी अपनी कज़न को ये कह देता है कि मैं ना जरनाब को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। अच्छा मुझे लग रहा था कि सिरा असगर थोड़ा सा एक्सप्रेशंस उनके ज़्यादा होंगे, हार्ट ब्रेक एक्सप्रेशंस। मतलब उसने सटल तरीके से बिल्कुल दिखाया कि देखो कभी कभी अगर बता दो ना उसको, जो लोग नहीं बताते तो बहुत देर भी हो सकती है। तो मुझे लगा कि उसने उस आई नो कि वो उसे पसंद करती है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके घर पे रिश्ते की बात भी चल रही है, मामू और अम्मी जो है वो रिश्ते की बात भी कर रहे हैं। बट अगर वो खुल के मतलब इजहार करती, मैंने ये नहीं रोना धोना स्टार्ट कर देती, लेकिन अगर वो थोड़ा सा खुल के जो है अपना हार्ट ब्रेक दिखाती तो आई वुड बी लाइक या ऑफ कोर्स, लाइक शी लाइक्स हिम, दैट्स व्हाई। उसने कुछ ज्यादा कुछ दिखाया नहीं एक्सप्रेशन। उसने कहा हाँ बता दो, पसंद करती होगी तो ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छी होगी तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो अगर तुम्हें ना पसंद करे, अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो यू नो मतलब मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सिरा थोड़ा सा और खुल के बोले, मतलब खुल के अपना एक्सप्रेस करेगी किसी तरीके से, अपनी आंखों से या अपने टोन से या अपने बिहेवियर से कि यू नो लाइक शी इज हर्ट, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। एनीवे फिर गौहर ने जो है वो चीप चीप हरकतें करना शुरू कर दी। नेक्स्ट डे जब गौहर जो है वो जॉब पे आते हैं तो एक एक को ना वो रूमर्स स्प्रेड करना शुरू कर देता है कि हम दोनों रात को यहाँ अकेले थे और हम दोनों, देखो मेरे पास तो उसका क्लिप भी है। सो ही इज इंसिन्यूएटिंग बेसिकली दैट समथिंग हैपेंड बिटवीन अस एट नाइट एंड यू नो समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इट वॉज अ लिटिल हैंकी पैंकी। तो फिरोज जो है वो इनसे लड़ाई करने लगते हैं। फिरोज भी सुन लेते हैं कि तुम जरनाब के बारे में ऐसे क्यों बातें कर रहे हो और ये और यूं और यूं। तो ना फिरोज एचआर के पास गए या किसी बॉस के पास गए, ना उन्होंने एस्केलेट किया, क्योंकि अब लड़ाई तक बात पहुंच गई है, धक्कम धुक्की हो गई इन लोगों की ऑफिस में और एक दूसरे के बाल बस नोचना रह गया था। और ना जरनाब गई, क्योंकि जरनाब के सामने भी, और जरनाब ने कहा कि अब अगर आपने ऐसी बकवास की तो मैं एचआर के पास जाऊंगी। तो आप किस बात का वेट करिए, अभी तक आप एचआर के पास गई क्यों नहीं? ना जरनाब गई है एचआर के पास और ना वो फिरोज का कैरेक्टर गया कि भाई ये बंदा मुझे हरास कर रहा है और ये आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, अब जरा इसको संभाल के रखें, लाइक ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स। इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये दोनों बस गौहर से लड़ते रहते हैं। मतलब आपको नजर आ रहा है वो किस तरह का कैरेक्टर है। यू डोंट हैव टू he's at a point of no return, like उसने जो करना है वो करता रहे, बट आप अपनी तरफ से तो आप हैं कि वो अली सफीना वाली कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, क्योंकि बहन का जो रिश्ता आया होता है तो बहन कहती है कि वो चाहता है कि बस 1 महीने में शादी हो जाए। तो जरनाब कहती है कि 1 महीना, दैट इज सो लेस, दैट इज सो सून, 1 महीने में कैसी शादी हो सकती है? उसके डैड भी कहते हैं कि बेटा नहीं 1 महीना तो बहुत कम है। लेकिन हमें पता ही है कि अली सफीना जो है इसको घुमा रहा है और वो एक नार्सिसिस्ट टाइप बंदा है, तो वो चाहता है कि यू नो जल्दी जल्दी शादी हो ताकि मैं इस पर अपना खुल के हुक्म जताऊं। और तो उसकी बहन भी सपोर्ट नहीं करती और डैड भी सपोर्ट नहीं करते। वो कहती है नहीं नहीं बस 1 महीने में, बस वो चाहते हैं कि बस 1 महीने में शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो वो एक डिस्कशन हो रहा होता है। अच्छा वहाँ क्या हो रहा होता है, वहाँ पे जो पूरी रात वो रुकती है, डैड भी बहुत ज़्यादा उसके परेशान हो रहे होते हैं ना ऑफिस में, जब वो पूरी रात रुकती है जरनाब, तो डैड भी कॉल करते हैं और वो फिरोज़ भी बहुत परेशान हो रहे होते हैं, जो फिरोज़ का कैरेक्टर होता है। खैर एनीवेज पार्टी होती है। फिर जब वो पार्टी होती है तो पार्टी में अनाउंस होता है कि ये जो लड़की है इसको हेड
ऑफ द डिपार्टमेंट का वो हो गया, इसको प्रमोट कर दिया है। अच्छा, वहाँ पे एक लड़का जो है वो ऐसा होता है ना कि जैसे पार्टी में जैसे कोई सिंगिंग करने आ जाता है और कोई जो है स्टैंड अप कॉमेडी करने आ जाता है, तो एक लड़का होता है वो कहता है कि मुझे पोइट्री करनी है। अच्छा, पोइट्री के वक्त जब वो पोइट्री अपनी सुना रहा होता है तो वो बेसिकली उसके जो वर्ड्स होते हैं पोइट्री के वो ऐसे होते हैं कि जरनाब को वो एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, बिकॉज वो जो पिछली रात थी पूरी रात ऑफिस में गुजारी है, और गौहर ने पहले ही ऑफिस में बात फैला दी है कि लाइक वी वर, तुम सब बस समझ जाओ ना, तुम लोग बस समझ जाओ ना, मैं उसके इतने क्लोज था और वो मेरे इतने क्लोज बैठी थी और यूं था और यूं था यूं था, बिकॉज उसको ऑफकोर्स उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना है ताकि उसकी जॉब चली जाए, यही मकसद है, राइट? तो वो पोएट्री में सारी पोएट्री इस तरीके से इन वर्ड्स में सुनाता है, और जरनाब और फिरोज जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि खुल के तो नहीं वो बात बयान होती, लेकिन पोएट्री में ना सटल तरीके से वो वर्ड्स ऐसे डिस्क्राइब होते हैं कि ऐसा था और ऐसा हुआ था, फिर एक रात यूं हुआ, फिर बारिश हुई, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ करके। अच्छा, फिर गौहर से बर्दाश्त नहीं होता कि इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जरनाब को, तो वो जो है इनकी फिर टाकरा होता है। फिर गौहर जो है वो कॉरिडोर में इसको कहता है कि सब पता है कि तुम बॉय जो है शुगर डैडी को फेवर्स दे दे कि तुम इस पोजीशन पे पहुंची हो, अदरवाइज तुम डिजर्व कोई नहीं करती है। तो जरनाब का दिमाग घूम जाता है और जरनाब भी इससे बहुत ज़्यादा इनकी तू तड़ाक टाइप होती है। जरनाब घर पहुंचती है, मतलब गौहर से अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर दो ना, मतलब अगर तुम इतने ही ज़्यादा उससे जेलिस हो और तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा डिजर्व करते हो तो तुम कहीं और जॉब के लिए दफ़ा हो जाओ, लेकिन ड्रामा ही ख़त्म हो जाएगा ऑफ कोर्स। खैर, जरनाब घर पहुंचती है, वहाँ उसके डैड कहते हैं डैड बेचारे काफ़ी अरसे से उसका वेट कर रहे होते हैं कि बेटी घर आएगी तो साथ में बैठेंगे। तो डैड को ना अपनी, मतलब शी इज़ वेरी अपसेट अबाउट दिस गौहर वाली फाइट, तो डैड को अपनी झाड़ के चली जाती है कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी प्लीज़। तो मुझे लगता है कि वो जो शुरू में सुसाइड नोट उसने रिकॉर्ड कर रही थी ना, जब एपिसोड 1 में जो वो सुसाइड नोट पूरा वीडियो पे रिकॉर्ड कर रही थी, वो आई थिंक कि ऑफिस वाली बात इतनी बढ़ जाएगी और गौहर इसको सबको इतना इंस्टिगेट कर देगा इसके अगेंस्ट। वैसे तो इनका ऑफिस इतना छोटा सा है, मतलब 4-5 लोग ही काम करते हैं ऑफिस में, तो इतना ये इंस्टिगेट कर देगा कि बात जो है सुसाइड तक पहुंच जाएगी। बट लेट्स सी, आई एम इंटरेस्टेड इन द शो। मीडियम स्पेस है, मतलब इट्स नॉट, अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज अगस्त में जो है हमारे पास 4-5 नए ड्रामे आ रहे हैं। पमाल आ रहा है, मासूम आ रहा है, बिरयानी आ रहा है, मैं ज़मीन तू आसमां भी का भी मुझे टीजर बहुत ही एवरेज सा लगा, तो वो भी पता नहीं मैं देखूंगी कि नहीं, लेकिन ये मेन 3 ड्रामे आ रहे हैं तो अब गूंज के साथ देखूंगी मैं, आई डोंट नो, नो प्रॉमिसेस। लेकिन अभी तक गूंज जो है वो एवरेज चल रहा है, इट्स नॉट लाइक स्पेक्टेक्युलरली अमेजिंग कि उफ पता नहीं क्या है, और इट्स नॉट लाइक टोटली फजूल जैसा कि मोहरा है। मोहरा का भाई मैंने आज सुबह इंस्टाग्राम पे डाल दिया अपना रिव्यू, तो काफ़ी लोग ऑफेंड भी हो गए कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उस टारगेट ऑडियंस के लिए बना है। मैं मोहरा की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ भाई, क्या हो गया है? आप वहाँ जाके मेरा मोहरा का रिव्यू देख लीजिएगा, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, अब हम ये क्रैप देखा करेंगे, आई मीन कम ऑन मैन। चलें भाई, डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 47, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्द यार। अच्छा, ये जो ओपनिंग सीन था ना जहाँ वो फिंगरप्रिंट्स देने जा रही होती है, तो मुझे 1,000,000% पता था, और ये मैंने लास्ट अपने यूट्यूब वीडियो में भी कहा था कि ये फिंगरप्रिंट इसके होंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा बीच में। भाई फिंगरप्रिंट ले लेते तो उसका तो भांडा उधर ही फूट जाता कि ये तो निहाल है, तो फिर तो ड्रामा उधर ही खत्म हो जाना था। लेकिन ड्रामे को जाना है भाई 65 एपिसोड्स तक, अभी तो सिर्फ 47 ही हुई है, किस बात की जल्दी है आप लोगों को? तो वो चल रही होती कांस्टेबल, अच्छा मुझे बहुत ही फनी सीन था, वो जा रही होती है मीशा नानी स्लो मोमेंट, मैं क्या करूँ अगर इन लोगों को पता चल गया, अगर इनको पता चल गया कि मैं क्या करूँ पीछे से वो जो पुलिस का वो जो होता है ना कांस्टेबल, लाइक सुपरवाइजर व्हाटएवर, वो कहते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो वो जब छीना झपटी हुई थी तो इसके तो फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी आ गए थे गन पे, तो इसकी तो हमने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं है। हीरा मानी के एक्सप्रेशन वहाँ पे क्या थे शबाब देवी के, बट वाई अगर ऐसा होता ना कि हीरा मानी के ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका होता, हीरा मानी के सामने, शबाब देवी के सामने अगर मीशा नानी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी होती, और ये सारा जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फिंगरप्रिंट्स की ये इन्होंने डिवाइस किया होता शबाब देवी ने, और ये इनका एक तरीके से होता मखोटा कहते हैं ना, मखोटा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, फेस रिवील होता निहाल का कि भाई
ये हम शबाब देवी की तरफ से लाइक ये पूरा एक प्लॉटिंग होती है कि इस तरीके से इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। मैं समझती हूँ उस सिचुएशन में बिल्कुल आपके वो बनते थे एक्सप्रेशंस के, ओ शिट के यार शिट अब मैं क्या करूँगी, अब तो ये बच गई। लेकिन अभी तो आपको पता ही नहीं है कि ये मीशा नैनी निहाल है, और सिर्फ पुलिस कांस्टेबल ने ये कहा है कि भाई इसकी तो फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हमारे पास है, वी डोंट नीड अनदर सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इसकी जरूरत ही क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, जीक्यू पे भी कैमरा पैन होता है, जीक्यू एक हल्का सा ये हो जाती है कि इससे क्यों कह रहे हैं कि इसके नहीं चाहिए, यू नो लाइक उनका एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन बनता था। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सप्रेशन ही ना दे, एक्सप्रेशन बनता था, लेकिन जीक्यू वाज लाइक इन अ शी हैड अ लिमिटेड एक्सप्रेशन कि लाइक व्हाई आर दे टेलिंग हर कि इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शबाब देवी है, ये इतना एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशन मतलब हाउ इज इट जस्टिफाइड? मतलब या तो आपका कोई सिचुएशन ही और होता ना तो फिर। अच्छा, उसके बाद जवार शाह का भी एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आया। जब कांस्टेबल कहता है ना कि नहीं नहीं इसके नहीं चाहिए, तो जवार शाह यूं शीपिशली बहुत ही ना जमीन में गड़े जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या जवार शाह ने इसको पैसे वैसे खिलाए पीछे से कि नहीं नहीं मतलब मीशा का नहीं लेना फिंगरप्रिंट, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि इसकी, ऑफ कोर्स जवार को भी नहीं पता कि ये निहाल है, तो जवार का तो बस इसी सेंस में सेंस बनता है कि उन्होंने पीछे से जो है वो ब्राइब किया वो पुलिस को कि भाई इसके नहीं लेना बिकॉज ये मेरे दिल के करीब है, मेरी जान मन है, मेरी जान जान है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको जो है एम्बैरेसमेंट फील हो सबके सामने। तो ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। तो जवार शाह जो जमीन में गड़े जा रहे थे यूं यूं, आपने देखा होगा जवार शाह का कारपेट में घुस रहे थे वो, मतलब इतने ज्यादा वो शर्मिंदा हो रहे थे कि बिल्कुल यूं यूं। और शबाब देवी, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों के एक्सप्रेशन के, इनको कोई और क्यों मिला हुआ था डायरेक्टर से कि मतलब आप लोग कुछ और सीन का क्यों मिला हुआ था, और बाकी सारे जो जितने 25 लोग थे उस कमरे में उनको कोई और क्यों मिला हुआ था। आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। उसके बाद वो बच जाती हैं और बच के निकल जाती हैं। फिर दिखाते हैं शबाब देवी जो है वो उसको बहुत डांट रही है नौकरों को, कहाँ मर गए थे सब के सब, कहाँ मरे हुए थे तुम सब के सब, किसी ने भी मुझे बताने की जहमत की। तो उसने कहा कि नौकरानी जो है वो कहती है कि शाह साईं बहुत गुस्से में थे और वो उस वक्त ना कहा भी कि आपको बताएं, उन्होंने जीक्यू कौन है, फौजिया ने तो कहा भी कि आपको बताएं, लेकिन उस वक्त जवार शाह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और ये जो सब हो रहा था ये सारा सिलसिला, तो उस वजह से आपको नहीं बता पाए। वो नौकरों पे बरस रही थी और तो पीछे से वो आ जाते हैं जवार शाह, वो जवार शाह पे बरसना शुरू हो जाती हैं। मुझे पता चल गया तुम्हारे अफेयर का, मुझे पता चल गया कि तुम मीशा नैनी के साथ उसको मेरी जगह दोगे उसको, मुझे छोड़ दोगे, मुझे तलाक दोगे, क्या भूल गए? वो लड़की तुम्हें फंसा रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? इतना बड़ा कर रहा है, कहीं भी पड़ी रहना। लेकिन उसके साथ जब मैं होता हूँ तो वो मुझे ऐसा फील कराती है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जब मैं होता हूँ तो मैं एक कुत्ते जैसी कुत्ता कर देती हो तुम मुझे। मेरी कुत्ते से भी वर्स पोजीशन होती है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे कहने पे मैंने नेहा से शादी की, तुम्हारे कहने पे मैंने ये किया, तुम्हारे कहने पे मैंने जैसा जैसा तुम कहती हो लाइफ में मैं वैसा वैसा करता हूँ। क्या मेरी अपनी कोई, अब अचानक उनको मेरी अपनी कोई, भाई अगर आपकी नेहा से शादी करवा दी थी उस वक्त तो यही दिखाया था कि आपकी जबरदस्ती शादी हुई है, लेकिन फिर आप हर रोज उसके साथ बेडरूम में होते थे, ये तो उसने नहीं कहा था ना। उसने तो बस कहा था कि शादी कर लो बच्चे के लिए, राइट? तो वो उसको इस तरीके से इमोशनली एक्सप्लॉइट करता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं होना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो सब मैंने अफेयर चलाया है और मैं तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, बिकॉज तुमने मुझे जो है इस तरह के इन्वायरमेंट में डाला और तुमने जो है मुझे इस तरह का एक्सपोजर दिया कि अब मुझे हर लड़की हसीन लगने लगती है, बस तुम ही एक जहर लग रही हो। अच्छा, तो फिर मैं हुनैन को लेके, मैं अपने बच्चे को लेके एक कोने में पड़ी रहूंगी, मैं अपने बच्चे को लेके, वो बच्चे को उठाती है। तो जवार शाह क्या कहता है उससे, भाई इम्पेक्केबल डायलॉग। जवार शाह कहता है तुम्हारा इस बच्चे से क्या ताल्लुक है, ये बच्चा तो मेरा और निहाल का है। वाह, इस पे तो भाई एक भंगड़ा बनता था। तो अचानक से ना मेरे दिमाग में वो क्लिप जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, जिसपे वो बेबी को, वो जो अकीका बोलते हैं ना, वो जो हो रहा होता है बेबी का पूरा वो सेलिब्रेशन हो रहा होता है, सब नाच रहे होता है, वो फोक डांसर्स गोल 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 गोल, और माँ तोहफा मिला है वारिस हमको अपना मिला है, ओ हो, ऐसे करके वो शबाब देवी पूरी इवेंट में नाच रही होती हैं। और जब वो आ जाती है, क्या कहते हैं, निहाल जब रिक्शे में बैठ के आती है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है अपने बच्चे को। तो मैंने कहा कि ये वो है इनके लिए
karma is a bitch वाला मोमेंट आ गया है कि वहाँ वो तो बच्चे को लेके नाच रही थी कि मेरा बेटा, और यहाँ जो बाप है 3-4 महीने ही हुए होंगे इस बाप को, यहाँ जो है वो बाप साहब जो कह रहे हैं कि तुम्हारा इस बच्चे से क्या ताल्लुक है, ये बच्चा तो मेरा और निहाल का है, और ये बच्चा भी यहीं रहेगा, और इतना बड़ा घर है किसी भी कोने में पड़ी रहना। तो मतलब उसको कुत्ता कुत्ता करके वो चला जाता है। ये बेसिकली अब इनकी बात साफ हो गई है। पहले तो वो शर्मो हया में जो है वो शबाब देवी सामने से बोल नहीं रही थी कि मुझे बेसिकली पता है कि तुम मेरे ही नाक के नीचे चीटिंग कर रहे हो, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया है कि भाई हेलो। तो उसने कहा कि बस ठीक है, जो है सो है, तुम्हें तो नहीं छोड़ा ना, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, राइट। अच्छा, वहाँ फिर दिखाते हैं क्यों, ये मैंने इंस्टाग्राम पे आज सुबह क्लिप लगाई कि वहाँ पे दिखाते हैं कि अब आमिर की बारी है। पहले फौजिया, पहले जकिया मेरी बहन जकिया गई, फिर ये गए अपने जावेद गए, और अब आमिर की बारी है। क्योंकि आमिर का जिस तरीके से मीशा नैनी अब उनको चला रही हैं, आमिर को घटिया 2 रुपए का उनको ला के देते हैं एक नेकलेस, और वो ये तो बहुत कीमती है। मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिप डाली है, जाके देखिएगा ज़रूर, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है। अच्छा तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं पहना दूँ। अच्छा, वो छिचोरे आमिर उनसे कहते हैं मैं पहना दूँ, तो वो बात को इधर उधर कर देती है मीशा नैनी के, नहीं अभी तो नहीं पहनूंगी, आराम से जाके घर पे पहनूंगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये पहुंचती हैं घर नेकलेस लेके अपने बैग में, तो जीकी उन्हें पकड़ लेती है कि क्या चोरी छुपे चोरों की तरह हर वक्त मेरे घर से अंदर बाहर होती रहती हो। तो मीशा नैनी से कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर आपका नहीं है, घर जवार शाह साईं का है, और मुझे जवार शाह साईं ने रखा है। तो वो कहती है कि पर्स में दिखाओ, पर्स में क्या है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, डब्बे को खोलती है तो उसमें हार निकलता है। ये तो मेरा हार था, तुमने मेरा हार तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे, चोर चोर चोर, सबको बताऊंगी, जवार शाह को बताऊंगी, चोर 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 चोर। वो कहती है जवार शाह को बताने से पहले एक बार अपने हस्बैंड से जरूर पूछ लें, क्योंकि उन्होंने मुझे हार दिया है। पीछे से हस्बैंड आ जाते हैं, वो फौजिया को पकड़ लेते हैं कि क्या कर रही हो, क्यों तमाशा बना रही हो, नहीं ये मैंने दिया है इसको हार, ये मैंने दिया है, उसको पकड़ के ऊपर लेके चले जाते हैं, और मीशा नैनी अपने कमरे में चली जाती हैं। तो वहाँ वो ज़रा फौजियाँ जो हैं वो उनको ताव दिखाने की कोशिश करती हैं अपने हस्बैंड को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसको मेरा हार दे दिया। उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम्हारा हार नहीं है, वो जकिया का हार था, और मैंने उसको जकिया का हार दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। उसने कहा अपना मुंह बंद करके बैठी रहो यहाँ पे, वरना सारी कोठियाँ वोटियाँ जो जकिया से तुमने जो है वो सब ली हुई है ना, मतलब एक तरीके से फ्रॉड से, वो मैं सब जवार शाह को बता दूंगा। तो यहाँ मतलब मीशा नैनी का गेम इस तरीके से दिखाया डायरेक्टर ने कि वहाँ जवार शाह जो है वो अपनी बीवी को कुत्ता कुत्ता कर रहा है मीशा की वजह से, मीशा की मोहब्बत में, और यहाँ आमिर जो है वो फौजिया को कुत्ता कुत्ता कर रहा है मीशा की मोहब्बत में। तो दोनों आदमी जो हैं वो बेसिकली अपनी वाइफ्स को ज़रा वो कर रहे हैं, बिल्कुल ही अपनी वाइफ्स के साथ बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बिहेवियर रखा हुआ है, सिर्फ उस मीशा नैनी की वजह से। और आपस में दोनों आदमियों को ही नहीं पता कि मीशा नैनी दोनों को चला रही हैं। जवार को तो खैर वो फुल टाइम चला रही हैं, और आमिर को पार्ट टाइम चला रही हैं। तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। वो जो नहीं है, क्या नाम है उसका, नूरी के भाई को वो सिमेटरी में मिलती हैं, वो भी बहुत ही फनी सीन था। आई एम सॉरी टू से बहुत ही ऐसा फ्लॉलेस मीशा नैनी का मेकअप था उस सिमेटरी में। मतलब सिमेटरी में है यार, आप रात के पता नहीं किस पहर में, रात का माहौल, मतलब रात के टाइम पे एक लड़की फ्लॉलेस मेकअप में सिमेटरी में खड़ी हुई है, ऐसा परफेक्टली चीता प्रिंट दुपट्टा पहन के, और ऐसा वो हाई कॉलर जो है ना ब्लैक ड्रेस पहन के। मतलब कि मीशा नैनी का जो ये सिमेट्री आउटफिट जिसने भी डिज़ाइन किया है, भाई बल्ले बल्ले शावा, आपने जो काम किया है मीशा नैनी उसमें एक बिल्कुल ही कटोर मॉडल की तरह ना यूं खड़ी हुई है। यहाँ है तुम्हारी बहन, मिल लो अपनी बहन से। वो बेचारा रोना धोना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरी बहन ये कैसे मिट्टी में चली गई, मेरी बहन कैसे मिट्टी में चली गई। हाँ, तुम्हारी बहन को बहुत बेदर्दी से उन लोगों ने मार दिया, और मुझे भी मारा, और वो देख रहे हो वो किसकी कब्र है, वो मेरी कब्र है। वो आदमी क्या कह रहा है, नूरी का भाई, आपकी कब्र, लेकिन आप तो, हाँ मैं कोई रूह नहीं हूँ। मतलब ये डायलॉग चल रहे हैं सीरियस ड्रामे में, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कोई अमेरिकन हॉरर स्टोरीज नहीं बता रही, आप जाके खुद देख लीजिए ड्रामे में, ये रियल मतलब ड्रामे में डायलॉग्स चल रहे हैं। आपकी खबर, लेकिन आप तो, घबराओ नहीं, मैं रूह नहीं हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। किसने लिखे हैं ये डायलॉग यार, मतलब आप सोचें, मतलब कोई इस तरह का हो ना, कोई कॉमिक हॉरर टाइप शो हो मैं समझती हूँ, लेकिन ये एक सीरियस शो में ये डायलॉग चल रहा है। वो कह रही है जीती, उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन देख लो ये कब्र खाली है,
और मैं यहाँ बहुत, तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द इन लोगों का बदला, नूरी की मौत का बदला मैं इन लोगों से लूँगी। बस वो सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट डे जो है वो जवार शाह आते हैं मीशा नानी के पास। आखिर बताओ ना, उनको भी तड़पाया हुआ है और इधर आमिर को भी तड़पाया हुआ है, दोनों को इसने चूल्हे पे, अलग अलग चूल्हे पे, एक को हाई गैस फ्लेम पे रखा हुआ है, एक को मीडियम गैस फ्लेम पे रखा हुआ है। तो वहाँ वो कह रहा है उससे, बताओ ना मुझे कब जवाब दोगी मेरे प्रपोजल का। तो वो कहती है उसको कि आप मुझे बताएं कि आप शबाब को कब तलाक देंगी। अच्छा, शबाब के सामने ज़रा उनकी हालत अभी भी ख़राब होती है, अभी भी शबाब का इतना टैका है कि इनकी हालत उसके सामने ख़राब होने लगती है। तो वो जो है वो मे बी इसलिए कि वो थोड़ा रिच बैकग्राउंड से है ना शबाब देवी, क्योंकि निहाल अगर इसकी जगह होती तो कब का निकाल के उसको लात मार के फेंक चुके होते। तो वो उससे कहता है कि देखो अभी तो हालात ऐसे नहीं है कि मैं शबाब को जो है वो दूँ, तलाक दूँ। तो कहती है ठीक है। अच्छा, उसका भी मकसद शबाब को तलाक दिलाना नहीं है, उसका मकसद ये है कि मैं, फिर वो क्या कहती है कि ठीक है तो फिर बीच का रास्ता निकालते हैं। तो जवार शाह साई कहते क्या बीच का रास्ता क्या। तो कहती है कि ये घर भी मेरे नाम कर दें और हुनैन भी मेरे पास रहेगा। उसको तो बेसिकली यही चाहिए ना, उसको बस बेसिकली चाहिए कि ये मतलब दर बदर हो जाए। वो शबाब को नहीं मारेगी, बिकॉज शबाब का तो कोई मर्डर से सीन ही नहीं था, शबाब ने उसके साथ जातियाँ बहुत की हैं, वो उसको लाके पटख देगी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे शबाब हर्ट हो। बट आई डोंट थिंक शी इज गोना किल शबाब, बिकॉज शबाब का तो मर्डर, वो जो मर्डर में जो जितने लोग इन्वॉल्व थे, शबाब वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। शबाब विटनेस दैट, लेकिन मीशा को तो नहीं पता ना कि शबाब विटनेस दैट, बिकॉज उसने तो शबाब को देखा ही नहीं था वो मर्डर वाले सीन में जहाँ नूरी का और निहाल का मर्डर हो रहा होता है। तो वो बस ये चाहती है कि इनकी तलाक शलाक हो जाए और हुनैन भी इसको ना मिले, बस दैट्स इनफ रिपरकशंस फॉर हर, फॉर शबाब देवी। खैर एनीवेज, तो वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स इसमें क्या है, ये बिल्कुल तुम्हें मिल जाएगा। तो कहती है ठीक है, फिर अगर ये मुझे मिल जाएगा तो फिर मेरी तरफ से हाँ समझे। तो जवार के दिल में जो है वो कहती है कल को भाई अगर आपके तो इतने दावेदार हैं, कल को इस घर में से मुझे किसी ने निकाल के बाहर भेज दिया, शबाब ने या निहाल ने, तो मैं क्या करूंगी, मेरे तो सर पे छत नहीं रहेगी। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जो कहोगी। अभी तो वो फुल उसमें है ना, रोमियो मूड में, क्योंकि अभी उनको लड़की मिली नहीं है। जब उनकी बीवी बन जाती है, ये तो इतिहास गवाह है कि जब एक औरत जवार शाह की बीवी बन जाती है तो जवार शाह उसको फिर कुत्तों की तरह ट्रीट करता है। अभी तो वो उसके हाथ नहीं आई है ना, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। तो अभी तो इनके हाथ में नहीं आई है, जैसे ही वो इनके हाथ में आएगी वो उसको भी कुत्ते की तरह बिहेव करेगा, इसके साथ भी। तो निहाल के साथ भी वो ये सेम कर चुका है, इसके साथ शबाब के साथ भी वही सेम कर चुका है। तो जब अभी तो इनका वो बैरियर है, आप समझ रहे हैं ना, बैरियर। तो अभी ऐसा कोई सिनेरियो हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। तो बस ठीक है, बस मतलब अभी 15-20 एपिसोड रहती हैं, तो अभी तो आराम से आमिर का तो मतलब इस तरह का मर्डर दिखाए ना, आमिर का तो ऐसा दिखाएं कि बिल्कुल बस मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए। खैर जावेद का भी बहुत ही फ़नी था। फौजिया का सॉरी जकिया का मुझे इतना, क्योंकि जकिया का तो उन्होंने जेल में भेज दिया और वहाँ उसको पागल करके मार दिया, फॉर व्हाट रीज़न। जकिया का भी ऐसा दिखाते ना कि बिल्कुल ही मज़ा ही आ जाता। तो सो फार हमें सिर्फ जावेद के मर्डर में मज़ा आया है। तो अभी आप आमिर का दिखाइए और अभी आप फौजिया का दिखाइए, क्योंकि दोनों को मारना है आपने। और शबाब देवी और उनकी मम्मी का तो कोई मारने वारने का सिनेरियो नहीं है, मम्मी तो बिल्कुल ही शी वाज आउट ऑफ द होल थिंग। तो मज़ा आएगा भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ। मैं तो नहीं चाहती कि डायन ख़त्म हो, क्योंकि फिर हम कैसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। अच्छा, अभी मैं डालने लगी हूँ वीडियो, जो गॉसिप वीडियो, जो कुछ दुर्रफिशा और बिलाल के जो इतने इश्क मुर्शिद के फैंस हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि दुर्रफिशा का भी कोई इंटरव्यू आया है तो उसके बारे में आप बात करें। कि उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि मेरा तो बिलाल के साथ कोई सीन ही नहीं, हुज ही, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। हाँ, हम तो सिर्फ को एक्टर्स थे और हम तो सिर्फ प्रोफेशनली एक्ट कर रहे थे। तो ये सारे डेटिंग रूमर्स और ये सारी शादी के रूमर्स, डेटिंग रूमर शादी के रूमर्स सिर्फ बिलाल के साथ ही क्यों आए, आपने तो और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है। तो when there is fire there is a smoke। तो खैर मैंने उसके बारे में कुछ बातें की हैं, तो आप वो इंस्टाग्राम पे जाके क्लिप देख लेना। let me know your feedback, please don't forget to subscribe, please don't forget to like, please don't forget to follow, please don't forget to comment। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग को रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट्स शेयर भी करती हूँ वीडियो में। तो मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, आपको अगर देखना है, अपने कमेंट्स सुनने हैं, ज़रूर जाके सुनिए।
नहीं सुनने रिव्यू पे आना है तो आप डायरेक्टली रिव्यू पे आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं अगस्त में क्या, अगस्त तो स्टार्ट हो गया राइट, आज क्या तारीख है? 5 अगस्त, आज ही आना है ना मासूम? नहीं 8 अगस्त को आना है मासूम, 8 अगस्त को मासूम आना है, और बिरयानी आना है नेक्स्ट वीक, और पमाल पता नहीं कब आना है भाई। खैर एनीवे, जैसे जैसे अच्छा जो जो अच्छा इंस्टाग्राम पे ना लोग आ जाते हैं, आप ये ड्रामा देख रही हैं, आप बहरूपिया देख रही हैं, आप मोहरा देख रही हैं, आप ये देख रही हैं, आप यूँ देख रही हैं। भाई जितने भी ड्रामे में देखती हूँ ना वो यहाँ पे रिव्यू हो रहे होते हैं, ठीक है। जो ड्रामा में नहीं देखती वो ऑफकोर्स मैं उसका रिव्यू नहीं करती, लेकिन ऑफकोर्स अब वो लोग भी इंस्टाग्राम वाले हैं ना, उनको नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यहाँ पे डिटेल रिव्यूज करती हूँ। एनी विच वे, whatever dramas I watch, मैं उसके सामने आपके सामने उसकी बात कर देती हूँ। Anything else I just don't watch. अगर मैं देख रही होंगी तो जरूर बात करूंगी। ओके बाय, लव यू ऑल।